Hello everyone and welcome back to microprocessor subject. Till now we have dealt with the basics of computer. Now we will do the microprocessor. That means now what these basics of microprocessor means. First of all, microprocessor itself is a processor only, just like the way we have dealt with the CPU of the computer. Okay, so CPU is also what? This is also a processing unit. Similarly, microprocessor is also a processing unit. Now there are some basic features of microprocessor. They are like it is an 8-bit microprocessor. Now always remember that 8085 is an 8-bit microprocessor. So that means what? From here only, make sure one thing, that it is actually, you can say that data bus. We will deal with this data bus afterwards, and then you will come to know. So when we are talking about that it is an 8-bit microprocessor, so always remember that the data bus of 8085 microprocessor is 8-bit. Okay, the first thing that you have to keep in your mind, that 8-bit data bus is there, and it actually means that we can only take 8 bits at a time. That means this microprocessor can deal with only 8 bits at a time. 8-bit means 0101, so 8 times you can take that particular sequence. Okay, so it can be anything. Suppose if you are writing 2 in binary, as I told you in my last lecture also, that 2 in binary can be written as 10. So just put 6 zeros just before that 1, and then 00000010. It will become 2 only. But those 8 bits can be taken, can be processed by the 8085 microprocessor. This is what an 8-bit microprocessor means. Okay, it is manufactured with NMOS technology. Now remember that in the last lecture also we have dealt with NMOS technology. That is this is negative metal oxide semiconductor technology, and we dealt with that this is actually nothing but the memory. Okay, so NMOS technology means this kind of memory is used in 8085 microprocessor. It has 16-bit address bus. Now remember one thing, the way I told you about data bus, similarly we have an address bus, and again just recall, I told you about a control bus also, but not required. Control bus doesn't mean that we need some kind of bits. So address bus is of 16-bit in 8085 microprocessor, data bus is of 8-bit in 8085 microprocessor. Keep this thing in your mind. Okay, and hence now what does this address bus means? See, if I do, I'm unable to actually write here. I don't know how to do this, but this is actually not 216. This is 2 to the power 16. So when you take 2 to the power 16, that means 16-bit address bus shows that it actually have 65536 bytes. Or you can say that it actually have this number of memory locations. Now what memory location is? Suppose this is some memory. Okay, and there are many memory locations where you can save the data individually, because you have to deal with a lot of, suppose sometimes you are doing addition, sometimes you are doing subtraction, so every result will be saved in an individual area. Okay, suppose this is an individual area. You have saved the result of summation A here, you have saved the result of your subtraction, which is B here, you have saved the result of your multiplication, which is C here. Okay, so now how will you come to know that where the data of subtraction is saved, where the data of addition is saved, and where the data of multiplication is saved? So all these memories places have some memory locations, have some addresses. That is why it is called address bus. Okay, so there are, you can imagine, there are 565536 number of these partitions are there in a memory location, which are actually 65536 bytes. Now starting from 0 to 65536 bytes is actually quite complicated. So always remember, every box is given a address. May be possible that the address starts from 0 0 0 and 0 here. Okay, because it can be of 16-bit, so 16-bit ka hi ek pura ka pura address hoga, which will start from 0000, and this is in hexadecimal, remember, and it will go till F F F and F. So this is actually what the memory location means. अब ये सारे addresses इनके 0000 से FFFF तक H होंगे.
हर जगह पे मेमोरी लोकेशंस गिवन होंगे। आप ये मान लो कि ये उसी तरह से है, 64 KB की मेमोरी है, ठीक है ना। 65536 एक्चुअली यहाँ पे आपने इसको कर दिया 64 KB मेमोरी। तो ये एक चीज आप ध्यान रखना कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर actually have a 64 KB memory locations, ठीक है। we start from A0 to A15, that means कि A0 से लेकर के और up to A15 which is FFFF, यहाँ तक आप जा सकते हो। तो आप इसको इस तरह से मान लो मेमोरी लोकेशंस की, सपोज आप एक सिटी है, ठीक है ना, सिटी के अंदर बहुत सारे घर बने हैं, सबको पता है, सब अपने अपने घर में रहते हैं। सपोज आप किसी सिटी में गए और आपको वहां पे किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से मिलना है, तो क्या आप इतनी बड़ी सिटी में उसका घर ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो उसे आप कैसे ढूंढोगे? यू शुड हैव द एड्रेस ऑफ हिज होम, ठीक है ना। जब तक आपके पास एड्रेस नहीं होगा, आप अपने फ्रेंड को उस इतनी बड़ी सिटी में नहीं ढूंढ सकते हो। नाउ एवरीथिंग रिक्वायर्स एन एड्रेस, विदाउट एड्रेस यू कैन नॉट गो एनीवेयर। सो दिस इज सिमिलर टू दैट थिंग। एक बड़ी सी मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन है, ठीक है ना, मतलब आपके पास पूरी मेमोरी है जो कि आप 65536 बाइट्स कंटेन कर सकती है, ठीक है। अब आपने अपने 8 या अपने 16 बिट्स कहाँ डाले उस 65536 बाइट्स में, वो चीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो वो क्या है, उसमें हमने पार्टीशंस कर दिए, ठीक है। और 000 से एड्रेसेस दे दिए FFFF तक, 0000 0001 0002। अब क्या होगा, आप जो भी मेमोरी लोकेशन बताओगे माइक्रो प्रोसेसर को सेव करने के लिए, सपोज आपने ये बोला कि देयर इज सम मेमोरी लोकेशन 2000 जहां पे मेरा डेटा सेव है, सो माइक्रो प्रोसेसर, द प्रोसेसर जो होगा वो सीधे सीधे 2000 पे मूव कर जाएगा, एंड देन इट विल चेक दैट यस योर रिजल्ट इज हियर। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपने 2000 में सेव कर रखा है, सपोज FFFF में आपने जो है सब्ट्रैक्शन का सेव कर रखा है, तो डायरेक्टली जैसे ही आप मेमोरी लोकेशन बताते हो, यानी कि जैसे ही आप एड्रेस बताते हो, वो तुरंत डेटा को वहां से क्या कर लाएगा, रिट्रीव करके ले आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ next point is the first 8 lines of address bus and 8 lines of data bus are multiplexed. Okay, we will deal with this later on because pin diagram में ये चीज मैं आपको बता दूंगी कि कैसे होता है। डेटा बस इज अ ग्रुप ऑफ 8 लाइंस, D0 से D7, क्योंकि 8 बिट का है तो D0 से D7 तक। हम हमेशा जब बाइनरी में वर्क करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम 0 ओनली। सिमिलरली A0 to A15, बट एक्चुअली क्या है, ये 16 बिट है, ठीक है। तो 1 से 16 ना जाके हम 0 से 15 जाते हैं। Then it supports external interrupt request. Interrupt भी क्या होता है, you will come to know very soon. 16-bit program counter. ये जो दो आपके हैं, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, ये आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। और याद रखना, अभी जब हम इसके बाद आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि आर्किटेक्चर यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर को ही चेक करता है। ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सिमिलरली 16-बिट स्टैक पॉइंटर, ये एक अलग स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैक मेमोरी, ठीक है। तो स्टैक मेमोरी का भी जो लोकेशन होता है, यानी कि वो एक अलग से डिफाइंड एरिया होता है, तो उसकी भी कुछ लोकेशंस डिफाइन कर दी जाती हैं कि ये एड्रेस से इस एड्रेस तक का ये स्टैक मेमोरी है। तो वो पहला एड्रेस जहां से स्टैक मेमोरी स्टार्ट हो रही है, वो आपके स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में सेव होता है। प्रोग्राम काउंटर भी आपका उसी टाइप का ही एक रजिस्टर है। वहां पे आप क्या करते हैं, आपने जहां से प्रोग्रामिंग अपनी शुरू करी है, उसका जो पहला एड्रेस होता है वो आपका प्रोग्राम काउंटर में सेव होता है। इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में जाता है, ताकि उसे ये तो पता चले कि आखिर जो प्रोग्राम जो उसको रन करना है वो है कहाँ पर, किस एड्रेस में आपने स्टोर किया हुआ है अपने प्रोग्राम को। तो वो प्रोग्राम काउंटर से उठाता है एड्रेस, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली एड्रेस को स्टोर करते हैं, ये रजिस्टर्स। देन देयर आर 6 8-बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये मैंने आपको बताया था, दीज आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। इनको हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं, विच आर प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर। और ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ठीक है। आपके 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, BCD and HL, ठीक है। और इनको हम पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं। Then the most important feature of 8085 microprocessor, it uses a 5-volt supply and
it actually operates on 3.2 megahertz single phase clock. Always remember this thing, 3.2 megahertz is a single phase clock we used to. So almost around you can say 6 megahertz is used. ठीक है ना, यानी कि जो इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है that is somewhere around 6 megahertz. Now there is a 40 pins DIP यानी कि dual inline package. Okay, 40 pin की IC होती है ये. Now let's move to the 8085 architecture. It seems to be quite tough, but please अगर एक बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो फिर याद रखना कि आप इसको कभी भी भूलोगे नहीं. सबसे पहले तो जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, कि कुछ रजिस्टर्स होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, अलग अलग ये होते हैं. जैसे ये रजिस्टर्स हैं, मैंने अभी आपको बताया था BCDEHL, यू कैन चेक फ्रॉम हियर BCDEHL, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं. मैंने आपको एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर बताया था प्रोग्राम काउंटर, जिसका काम क्या है कि जब इस आर्किटेक्चर पे यानी कि इस पूरे के पूरे पे जब प्रोग्राम या प्रोसेसिंग होना शुरू होती है, ये क्या है आपका माइक्रो प्रोसेसर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रोसेसिंग शुरू होती है तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, दैट इज ये फर्स्ट पोजीशन है जहां से प्रोसेसिंग एक्चुअली स्टार्ट होगी. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, इसका जो मेन प्रोसेसिंग या मेन जो वर्क होता है वो ये होता है कि ये आपके जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग करानी है उसका पहला एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में सेव होता है. ठीक है, तो यहीं से आपका स्टार्ट होगा इस पूरे की पूरी प्रोसेसिंग का जो जिम्मा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्स द एड्रेस, तो वो सीधे क्या करता है, वो जा करके मेमोरी लोकेशन में, सपोज यू हैव गिवन द एड्रेस एज 2000, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, वहां पे इस एड्रेस पे जाएगा एंड चेक, ही विल चेक दैट कि क्या आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सपोज इफ देयर इज सम इंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशन, ठीक है ना, अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि ऐड, तो वो क्या करेगा, वहां से उसने इस डाटा को पिक किया. याद रखना, यहां से उसने एड्रेस उठाया था, एड्रेस पे गया यानी कि घर पे गया, और घर के अंदर जो लोग थे उनको उठा के लाना है. ठीक है ना, तो वो काम ये कर रहा है कि घर के अंदर जो डाटा सेव था, दैट मीन्स ऐड BC, आपने सपोज ये लिख दिया ऐड B, C. तो जब आप ये काम कर रहे हो B, C, इसको उठा के वो कहां पर लेकर आएगा, इट विल कम टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दिस इज सेकेंड थिंग, और यू कैन से दिस इज द थर्ड, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया था, PC से जो एड्रेस उठाया था उससे मेमोरी लोकेशन पे गए, फिर वहां से हमने ये डेटा उठाया और इसको लेकर के आए और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या किया हमने, ये पहला एड्रेस 2000 पे जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी थी वो हमने यहाँ पर डाल दी. देन व्हाट द नेक्स्ट थिंग विल गोइंग टू बी हैपन, इस रजिस्टर को यहाँ डालने के बाद इंस्ट्रक्शन डी कोडर में गए, यानी कि अब माइक्रो प्रोसेसर इस ऐड B, C को डिकोड करेगा कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है. तो जैसे ही वो डिकोड कर लेगा कि इट इज आस्किंग फॉर द डाटा कि आप B और C रजिस्टर के अंदर, ये रहा B रजिस्टर और ये रहा C रजिस्टर, इसके अंदर जो भी डाटा सेव है, सपोज B इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड C इज इक्वल्स टू 3. तो ये जो दो डाटा B और C रजिस्टर में सेव थे उनको उठा के लाना, उनको समझ में आ गया, और इनको हमें ऐड करना है. ये चीज इतनी क्लियर हो गई. डिकोडर में उन्होंने डिकोड करा. अब डिकोडर से डेटा को कहाँ भेजा इन्होंने, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट. आप ये मान लो कि पूरी कंट्रोलिंग यहाँ से हो रही है. दिस इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. क्यों, अब इस जगह से यहाँ पे ये जो टाइमिंग वर्ड आया है ये आप ध्यान रखना, इसको हम बहुत मे बी एंड में जाकर के हम इसको कंप्लीट करेंगे कि व्हाट इज टाइमिंग. टाइमिंग डायग्राम होता है पूरा का पूरा कि किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर कितने सेकेंड्स, कितने माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वर्क करता है. ठीक है ना, तो वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. ये X1 और X2 जो दो आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसीज हैं, दो आपके ऑक्सीलेटर्स कनेक्टेड होंगे, उस पर डिपेंड करेगा. नाउ कंट्रोल सर्किट, इसके नीचे आपको ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली कंट्रोलिंग के लिए यूज हो रहे हैं. क्लॉक आउट, रेडी, रीड बार, राइट बार, ALE,
S0 S1 IOM होल्ड रीसेट, यानी कि किस आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे फंक्शन करते हैं। अब कंट्रोल सर्किट का काम क्या होता है, वो जितने भी आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, चाहे ये हो आपका, चाहे इंटरप्ट कंट्रोल हो, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग्स, एएलयू, इन सबको डेटा भेज देता है। इन सबको जो है एक इंस्ट्रक्शन सेंड कर देता है कि हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आया है और अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको प्रोसेस करना है। तो जिससे भी रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जिस भी ब्लॉक से रिलेटेड होगा वो ब्लॉक आपका प्रोसेसिंग में लग जाएगा। तो ये क्या करता है, सिग्नल्स चारों तरफ, यहाँ से यहाँ 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 चारों तरफ सिग्नल सेंड कर देता है। तो ये काम होता है कंट्रोलिंग का, ठीक है, यानी कि हर उसको कंट्रोल करता है ये कि हमें ऐड करना है, तो ऐड के लिए हमें क्या यूज करना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यूज करना है। तो इट विल सेंड द डेटा फ्रॉम दिस 8-bit डेटा टू एक्यूमुलेटर एंड टू टेम्परेरी रजिस्टर, ठीक है ना। टेम्परेरी रजिस्टर में तो खैर नहीं भेजेगा, आई विल टेल यू व्हाट इज द वर्किंग ऑफ टेम्परेरी रजिस्टर, और फिर वो एएलयू में भेजता है। अब यहाँ अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, दैट मीन्स 5+3, और जो भी रिजल्ट आपका होता है दैट इज 8, दैट इज गिवन टू यू, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। नाउ सी, अब मैं इसमें आपको एक एक करके सारे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि क्या क्या कौन कौन से ब्लॉक्स किस किस वर्किंग के लिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटर। ओके, accumulator is also a special purpose register. This is also a kind of register where the first data is always saved. That means what? अभी तो हमने यहाँ पे लिखा था add b, c. Now there may be an instruction of this kind. Suppose I'm writing an instruction. Up you can check. May be possible. ये addition का भी हो सकता है, subtraction का भी हो सकता है. Suppose the instruction is written add b. ठीक है, तो जब इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन आता है ऐड बी, दैट मींस बी की वैल्यू को ऐड करना है, बट कहाँ करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर एक्यूमुलेटर इज बाय डिफॉल्ट हियर। ए टाइप का रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हम इसको बोलते हैं। एंड ऑल यहाँ पे जो भी डेटा सेव होगा चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर एक्यूमुलेटर में आपके जीरो भी है इनिशियली, तो जो भी बी की वैल्यू थी 5 के साथ आपको क्या करना है, ऐड करना है, 0 को ऐड करना है। ये तो पहली चीज होगी। सेकेंड थिंग, द सेकेंड वर्क ऑफ एक्यूमुलेटर इज कि एएलयू का जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, सपोज यहाँ पे 5+0 मान लेते हैं, रिजल्ट इज 5, ठीक है। नाउ एक्यूमुलेटर विल सेव दिस रिजल्ट विच इज 5। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एक्यूमुलेटर में रिजल्ट 5 सेव हो जाएगा, यानी कि एएलयू के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा, अगर आपको यहाँ पे मेरे इसमें ब्लॉक में दिख रहा है कि 5+3 मैंने एएलयू में लिखा है, तो आप इसी को एज्यूम कर सकते हो 5+3 इज 8, तो एक्यूमुलेटर में 8 सेव हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एएलयू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सबसे पहले कहाँ सेव होगा, जाकर के एक्यूमुलेटर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर का काम क्या होता है, टेम्परेरी रजिस्टर एक्चुअली इट इज नॉट यूज्ड बाय द यूजर। टेम्परेरी रजिस्टर को यूजर यूज नहीं कर सकता है, ये खुद माइक्रो प्रोसेसर जब प्रोसेसिंग करता है, जब वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, तब अगर उसको रिक्वायर्ड होता है तो वो इस टेम्परेरी रजिस्टर को यूज करता है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि टेम्परेरी रजिस्टर कैसे यूज होता है। लेट्स सी, चलो मैं अभी बता देती हूँ आपको। ओके, suppose there is a register 1, there is a register 2, ठीक है। यहाँ पे आपके ये दो रजिस्टर्स हो गए। अगर हम इसको बोलते हैं रजिस्टर ए और इसको बोलते हैं रजिस्टर बी, ठीक है। तो अगर सॉरी या दिस इज रजिस्टर बी, ठीक है। अगर ये ए रजिस्टर है और ये बी रजिस्टर है, अब आपको कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी मिली है कि आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो एक ये आया आपका टेम्परेरी रजिस्टर, ये टेम्परेरी रजिस्टर है, ठीक है। अब ए की वैल्यू को बी में और बी की वैल्यू को ए में आप कैसे डालोगे, ये मेन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए की वैल्यू, ए रजिस्टर की जो भी वैल्यू है, सपोज यहाँ पर ए की वैल्यू हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पे बी की वैल्यू हम लिख देते हैं 5।
तो सबसे पहले हमने ए रजिस्टर की वैल्यू यानी 2 को हमने यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी रहे, हमने इसको ऑलरेडी टेम्परेरी रजिस्टर में सेव कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे, बी रजिस्टर की वैल्यू को, क्योंकि हमें इंटरचेंज करना है, तो इसको हम ए रजिस्टर में लिख देंगे। तो अब 2 की बजाय जब आप ओवरराइट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 2 हट जाएगा और उसके ऊपर 5 ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, नाउ दिस इज ब्लैंक, ब्लैंक भी नहीं है यहाँ पे, अगर ये 5 है क्योंकि अभी हमने सिर्फ इंटरचेंज किया है, वहां पे वैल्यू डाली है। अब इस टेम्परेरी रजिस्टर से हम वैल्यू उठाएंगे और इसको हम ओवरराइट कर देंगे। तो जब हम ओवरराइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 खत्म हो जाएगा और 2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने वैल्यू को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। दिस इज वेयर द माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टेम्परेरी रजिस्टर, ठीक है। तो ये काम था आपके टेम्परेरी रजिस्टर का, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू टेम्परेरी रजिस्टर हो गया। फ्लैग्स, फ्लैग्स जो होते हैं, टोटल 5 फ्लैग्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। और ये 5 फ्लैग्स हम अभी पढ़ेंगे एक साथ, बार बार मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये पोर्शन मैंने बता ही दिया है आपको। ये मैंने बता दिया कि बी सी डी ई एच एल ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये डब्ल्यू जेड दीज आर आल्सो सम जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, नाउ कम्स टू स्टैक पॉइंटर, ठीक है। स्टैक पॉइंटर के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टैक पॉइंटर में क्या होता है, सेम है। सपोज एक एरिया है मेमोरी लोकेशन में जहां, जिसको कि हम स्टैक मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। स्टैक मेमोरी आपकी वर्क करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है। जो भी लास्ट इन होता है दैट विल बी द फर्स्ट आउट, LIFO, ठीक है। तो उसमें होता क्या है ना, अब ये चीज आप ध्यान रखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक मेमोरी आपकी उस टाइप की मेमोरी होती है जैसे कि आपने देखा होगा आपके जीमेल के अकाउंट में, ठीक है ना, या आपका जो व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में, इन सब में यही मेमोरी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये मेमोरी एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, इसमें होता क्या है, जो भी मैसेज, चाहे वो जीमेल में मेल आई हो या ये आया हो, जो भी मैसेज आपका सबसे पहले आया होता है वो आपको सबसे नीचे दिखता है, और जो रीसेंट आया होता है वो ऊपर दिखता है, ठीक है ना। यानी कि आज की डेट का मैसेज आपको यहाँ दिखेगा और कल की डेट का मैसेज आपको यहाँ नीचे दिखेगा। सारे मैसेजेस में वो क्या होता है, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप वो नीचे जाता है। सो दिस इज व्हाट स्टैक मेमोरी इज। सपोज यहाँ पे आपने 23 सेव किया अगर आज की डेट में, ठीक है, यहाँ पे 23 आया, तो अगर कोई नया डेटा आया वो यहाँ पे 32 सेव कर देगा, लेकिन जैसे ही कुछ और नया डेटा आया तो ये क्या होंगे, एक एक स्टेप नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, ये एक एक स्टेप नीचे आते जाते हैं, और मे बी पॉसिबल कि ऊपर पूरा फिल हो जाए तो 23 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से करते करते पता चला यहाँ पे 54 कोई नई वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्टैक मेमोरी इज। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे इस तरह से वर्क करती है। नाउ द थिंग इज कि उसके लिए अब ये स्टैक मेमोरी जहां से भी यूज हो रही है उसका जो सबसे पहला एड्रेस होता है वो आपका स्टैक पॉइंटर में सेव होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। नाउ कम्स टू इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल इज एक्चुअली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन 8085, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं INTR, ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5 एंड RST 7.5, जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको सारे के सारे इंटरप्ट्स बताए, उसमें एक एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा, ये 6.1, दिस इज नॉट इंटरप्ट, दिस इज एक्चुअली इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का काम क्या होता है, ये एक्नॉलेज करता है कि इंटरप्ट हमें मिल गया है, और उसकी पूरी की पूरी कंट्रोलिंग यहाँ इंटरप्ट कंट्रोल से होती है। अगर कोई इंटरप्ट आता है तो ये वाला बॉक्स आपका क्या होता है, ये आपका वर्क करना शुरू कर देता है। एंड देन देयर इज अ सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल डेटा, यानी अगर कोई डेटा आपका सीरियली इनपुट हो रहा है तो वो सीरियल आउटपुट भी सीरियली वो आउट भी होगा, ठीक है। तो सीरियली इन होना और सीरियल आउट होना, ये आपका इस ब्लॉक में ये पूरी की पूरी वर्किंग चेक होती है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं, यहाँ पर है एड्रेस बफर एंड डेटा बफर, इसकी हम बात कर रहे थे। एक्चुअली जब हम एड्रेस
की बात करते हैं तो एड्रेस बस कितने की होती है, ये होती है 16 बिट की, मैंने आपको बताया था, यानी फ्रॉम A0 टू A15, ठीक है। और डेटा कितने के होता है, D0 टू D7 यानी कि 8 बिट का होता है। नाउ सी एड्रेस बस का जो भी डेटा होता है वो आपका यहाँ से मूव करता है। एक्चुअली A0 से A15 का मतलब ये हुआ, सिंस वी आर वर्किंग, तो ये इस तरह से आपको 16 लाइंस चाहिए, हर एक बिट के लिए एक लाइन होती है, ठीक है ना। एक आपका वायर टाइप का होता है। ओके, सो जब हम इस तरह से 16 यूज कर रहे हैं तो डेटा के लिए भी हमको 8 यूज करनी होगी, तो 16 प्लस 8 यानी ऑलमोस्ट अराउंड 24 वायर्स को हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि इस पूरे के पूरे सर्किटरी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला कि जो एड्रेस के जो 16 वायर्स हैं उसमें से ही फर्स्ट 8 यानी कि जो लोअर बिट्स के लिए यूज हो रहे हैं, एड्रेस के लोअर बिट के लिए जो यूज हो रहे हैं वायर्स, उन्हीं को हमने डेटा बिट्स को मूव कराने के लिए भी यूज कर लिया, बिकॉज वी नीड एड्रेस जस्ट फॉर वंस, ओके, बट डाटा कैन बी मूव्ड मेनी टाइम्स, क्योंकि हमें अलग अलग डेटा जो है मूव कराना होता है, लेकिन एड्रेस जो है वो सिर्फ एक ही बार मूव करता है और उसके बाद सारी की सारी लाइंस फ्री हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सिंग आपकी क्या करती है, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब हुआ कि एक साथ आप उसमें एड्रेस को भी मूव करा सकते हो फॉर वन टाइम, मतलब वन टाइम का मतलब है एक क्लॉक पल्स में, जैसे आपके टाइमिंग चल रही है तो उस टाइमिंग का सिर्फ एक पार्ट हम यूज करेंगे, वन क्लॉक पल्स फॉर एड्रेस, जैसे एड्रेस सेंड हो गया ना, नेक्स्ट इट इज मेड फ्री फॉर डाटा टू मूव इन, ओके। सो दिस इज व्हाट एड्रेस बफर एंड डेटा एड्रेस बफर्स आर। एक चीज और आप ध्यान रखना हमेशा कि जो एड्रेस बिट्स होती हैं, यानी कि जो एड्रेस आपका एड्रेस बस होती हैं, आप कहीं पे भी जिस इस तरह के आप बना रहे हो, सपोज कोई भी एरो बना रहे हो, तो एक एरो इस तरह से बनता है और एक एरो आपको मिलेगा जो कि बाय डायरेक्शनल होगा। सो रिमेंबर दैट एड्रेस बस इज unidirectional, whereas data bus is bidirectional. Okay, so I just put a rest here only. Now next we will deal in the next lecture. Till then, take care.